Assalamu alaikum guys, welcome back. This is your instructor Shah Fahad Khan, and let's continue with the chemistry section of Nmdcat 2020 paper. And we left at MCQ number 70. Now we're going to continue from MCQ number 71. So let's begin. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Okay, so this is your 71. Which of the following reactions has greater Kp than Kc? Kp being greater than Kc. Okay. Kp and Kc, what is the relationship in between them? Well, Kp equals Kc multiplied by RT to the power of delta N, where delta N actually represents the moles of the products minus the moles of the reactants, given that both of them are actually gases. All of these are gases, okay? These are gases. Now, moles of the products minus moles of the reactants. If this delta N value is equal to 0, in that case, RT to the power of 0 actually means RT becomes 1, because anything to the power of 0 is 1. In that case, only Kp will equal Kc. But now they're asking us which of these is the Kp gonna be greater than Kc. For Kp to become greater than Kc, this delta N has to become greater than 0. Okay, it has to become either 1, 2, 3, and so on. So since this is the difference in the moles of products and reactants, so the moles of products, let's look at the moles of products over here. So if you look at option number, let's say option C. Yep, option C. If you look at option C over here, this one, the moles of products are 3. We have 3 moles of product, and we only have 2 moles of reactant. So 3 minus 2 is 1. That actually means delta N is actually greater than 0. So option C is the correct answer, because if delta N is greater than 0, in that case, Kp will become greater than Kc. If delta N is less than 0, in that case, Kp would become less than Kc. But if it is equal to 0, then Kp becomes equal to Kc. Okay, and you could actually apply the math over here, just plug in the value of delta N over here and so on. ठीक है guys, अब 72 पे आ जाते हैं. In 72, the equation nitrogen plus hydrogen forming ammonia represents, okay, this is an equation of ammonia formation, and you guys know that ammonia formation occurs in the Haber's process, option B. Now, 73, the unit of the rate constant is the same as the rate of the reaction in, well, from theory, most of you might know that this is true for zero order reactions, because in zero order reactions, what happens that the rate is actually independent of the concentration of the reactants. And in that case, what happens? Well, rate is equal to K times the concentration of the reactant to its order, right? And order in this case would become 0. अगर order 0 हो जाता है, order तो power को ही कहते हैं, right? reactant के power को, अगर reactant का power 0 हो जाता है, मतलब reactant के कोई units नहीं बचेंगे, क्योंकि units के भी power क्या हो जाएंगे? 0, and in that case unit would also become 0. Sorry, not 0, it would actually become 1, because anything to the power of 0 is 1. So rate and rate constant की जो यूनिट्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, तो जीरो ऑर्डर इसका आंसर है. ठीक है. 74, the study of rates of chemical reactions and the factors that affect the rates of chemical reaction is known as chemical kinetics. ठीक है. chemical kinetics का पूरा चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, जिसमें आप rates of reactions आप पढ़ते हैं, of chemical reactions. ठीक है. आगे चलते हैं. 75, for the equation A going into products, if the concentration of A doubles, then the rate of the reaction increases 4 times, 4 folds, which means इट इज, अच्छा ये कह रहे हैं कि अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन ए का डबल कर दिया तो रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है. मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि रेट को आपने जब डबल कर दिया, 2 टाइम्स इंक्रीज किया, तो सॉरी नॉट द रेट, जब आपने कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स इंक्रीज किया, जब आपने कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स इंक्रीज किया, तो रेट जो है वो 2 के स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हुआ, राइट? 2 के स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हुआ, मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ. दिस इज व्हाट दे टोल्ड अस. तो जो ये पावर होती है वही आपका ऑर्डर होता है, राइट? इसकी पावर है 2, तो मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है. This is a second order reaction. Now 76, for which of the following order of reaction, rate of reaction is inversely proportional to the concentration of the reactant. अच्छा, rate equation एक लिख लेते हैं यहाँ पर. Rate is equals to K times the concentration of, let's say, A.
ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये रेट ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। के तो एक कांस्टेंट है, राइट, तो इसको हटा देते हैं। रेट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होना चाहिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ए को मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर ऑफ -1। ए की पावर क्या बन गई, -1, और जो पावर होती है उसी को क्या कहते हैं हम, ऑर्डर कहते हैं। तो ये नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये एक इनवर्स रिएक्शन ऑर्डर, इनवर्स रिलेशन है इसका रेट के साथ, ठीक है, नेगेटिव ऑर्डर जो होता है, ठीक है, और वो मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया क्योंकि इसकी जो पावर है वो नेगेटिव है। नाउ 77, द थर्मल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड, अच्छा ये तो सीधी सी डेफिनेशन है, याद कर ले, एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी जो थर्मल एनर्जी होती है कांस्टेंट प्रेशर पर, उसे हम एंथैल्पी कहते हैं। नाउ 78, बॉर्न-हेबर साइकिल इज यूज्ड टू डिटरमिन द लैटिस एनर्जीज ऑफ, अच्छा गाइस बॉर्न-हेबर साइकिल सिन बोर्ड में नहीं है, ठीक है, फेडरल बोर्ड में है, ए लेवल्स में भी है। तो ये क्वेश्चन ए लेवल्स में है, फेडरल बोर्ड में है, तो इसलिए शायद डाल दिया इन्होंने, लेकिन काफी बेसिक सा है, देख लेते हैं, ठीक है। बॉर्न-हेबर साइकिल इज यूज्ड टू डिटरमिन द लैटिस एनर्जीज ऑफ आयोनिक सॉलिड्स, ठीक है। ये बॉर्न-हेबर साइकिल की प्रॉपर्टी ही यही है कि इट विल डिटरमिन द लैटिस एनर्जी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नाउ हेसिस साइकिल आपको पता होगा, बॉर्न-हेबर साइकिल एक स्पेशल हेसिस साइकिल होती है जिससे हम आयोनिक सॉलिड्स की एंथैल्पी चेंज यानी लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, सही है, लैटिस एनर्जी उनकी कैलकुलेट करते हैं। नाउ 1 कैलोरी इज इक्वल टू, ये तो याद करनी है सीधी सीधी, 4.18 जूल्स, कहाँ गया ये रहा, 4.18। आगे चलते हैं 80, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S in S2O3 2 नेगेटिव इज, अच्छा ये कैलकुलेट कर लेते हैं, S2O3 एंड इसकी पूरे की पावर है -2। अच्छा X, ये S की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी हुई है ना, S की ऑक्सीडेशन स्टेट हम अज्यूम कर लेते हैं कि है X, ठीक है। S के एटम्स कितने हैं, 2 हैं, 2 एटम्स आर देयर, तो 2 को आप X से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, उसमें आप प्लस कर देंगे 3 एटम्स है ऑक्सीजन के ना, और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना वो हमेशा -2 होता है, एक्सेप्ट फॉर सुपर ऑक्साइड्स एंड पैरोक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड्स और पैरोक्साइड्स को छोड़कर बाकी सारे केसेस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। तो इस 3 एटम्स को आप -2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। अब ये आपने सब कुछ कर लिया, ये एक लीनियर इक्वेशन आ गई आपके पास, जो इसका ओवरऑल चार्ज है ना इस आयन का, उसके इक्वेट कर देंगे बस। अब आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट s का आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा -6, वहां जाएगा +6, 6 - 2 is 4, 4 डिवाइड बाय 2 +2 आ गया आंसर आपका, ठीक है। x is equals to +2 is the correct answer over here, ये रहा ऑप्शन डी, ठीक है। आफ्टर 80 we'll go on to 81, which is right over here. The common oxidation number of halogen is, halogens, well, halogens group 7 के तो -1 उनका common oxidation number है। Now during oxidation process, oxidation number of an element it increases, ये तो property है oxidation की, ठीक है। oxidation number increases and reduction में decreases, ठीक है। आगे चलते हैं 83, which of the following has the highest value of electronegativity, fluorine की of course पूरे periodic table में सबसे ज्यादा electronegative element fluorine ही है। Now 84 पे चलते हैं, which of the following hybrid orbitals has maximum s character, s character percentages में आप देखें किस में सबसे ज्यादा होगा। अब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को अगर आप देखेंगे ना तो एक में इसमें एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, मतलब 50% s कैरेक्टर है और 50% p कैरेक्टर है। इसमें सबसे ज्यादा ये परसेंटेज देख रहे हैं 50 बाकियों में से किसी में भी नहीं है, सिर्फ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में 50% s कैरेक्टर मौजूद है, ठीक है। Now 85, the first ionization energy is maximum for, इसमें से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम मैग्नीशियम की है, बिकॉज एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन मैग्नीशियम, एंड ये एक एक्सेप्शन है। मैं एक्सेप्शन की डिटेल्स में नहीं जा रहा, लेकिन बस इतना बता रहा हूँ कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ये एक एक्सेप्शन थी, अगर आपको याद हो, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सोडियम से तो ऑफ कोर्स ज्यादा है, लेकिन एल्यूमिनियम से भी मैग्नीशियम की ज्यादा है, एंड पोटेशियम से ऑफ कोर्स ज्यादा है क्योंकि पोटेशियम हैज अ लार्जर रेडियस। नाउ आगे चलते हैं 86, efficiency of chemical reaction can be expressed as efficiency को हम परसेंटेज यील्ड में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 87, in a vessel 10 grams nitrogen, 10 grams hydrogen, 10 grams oxygen are present, which one will have the least number of atoms? अच्छा guys ये सारे diatomic gases हैं, ठीक है, तो atoms में convert करने की जरूरत नहीं है, जिसके सबसे कम मोल्स होंगे उसके सबसे कम एटम्स भी होंगे,
ठीक है, तो आप अब मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, सो मोल्स कैलकुलेट, अच्छा आपने पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी, ये शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा, ठीक है। मोल्स मास अपॉन एम आर होता है, राइट। तो मास 10 ग्राम दिया हुआ है, एम आर नाइट्रोजन का होगा 28, ठीक है, डायटोमिक का एक एटम का 14 होता है, तो 2 का 28 हो गया, तो ये हो जाएगा 10/28। हाइड्रोजन का हो जाएगा 10/2 एंड ऑक्सीजन का हो जाएगा 10/32, राइट। अब इनमें से सबसे बड़ा डिनोमिनेटर ऑक्सीजन का है, तो ऑफ कोर्स ये नंबर सबसे छोटा होगा। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, right? You don't need to simplify it. This is the smallest number, right? Since this is the smallest number, then that means oxygen will have the least number of atoms because the oxygen itself has the least number of moles. ठीक है, that's the answer. Glucose का empirical formula पूछा हुआ है, well C6H12O6, right? C6H12O6 for empirical formula, just find out the ratio, right? So it's gonna be CH2O because 6 have divided. Okay, so now let's move on to the next one. CH2O option C है आपका यहाँ पर, ठीक है, ये एक सेकेंड, ठीक है, ये ऑप्शन सी हो गया ये, ठीक है। आगे चलते, द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटम नंबर एंड एल इज एन एंड एल। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कहते हैं और एल जो है इट्स एजिमुथल क्वांटम नंबर, एंड आपको पता है कि एल प्लस वन जो होता है वो एन के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसमें देख लें जो भी आपका इससे मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ए इसलिए मैच कर रहा है क्योंकि वो इन्होंने रीअरेंज करके लिखा हुआ है। नहीं वेट, ऑप्शन ए नहीं है, इट्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नॉट ए, इट्स सी, ठीक है, इट्स सी बिकॉज रीअरेंज करके लिखा हुआ है एल इज इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 90, क्वांटम नंबर वैल्यूज ऑफ 2p ऑर्बिटल्स आर। अच्छा 2p का क्या मतलब है? 2 एंड p, 2 का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड p प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका 2 है, ठीक है, एंड p का आपको पता है कि क्या होता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर p का होता है 1, ठीक है। और या फिर आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि अगर n की वैल्यू आपकी क्या कहते हैं, n की वैल्यू आपकी हो गई 2, तो l की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। आप यहाँ पर 2 प्लेस करेंगे तो l1 आ जाएगा आपके पास। तो n2 and l1 आपका आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, दिस इज ए। फिर 90 के बाद 91 पे चलते हैं। which pair has one electron in its s orbital? तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। बी इसलिए है क्योंकि मैं इनके डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख लेता हूं तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों। सोडियम तो आपको वेल पहले से ही पता है क्योंकि सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, एंड ग्रुप 1 का जो होता है क्या कहते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो एस में ही होता है, ठीक है, वो तो कोई इशू नहीं है। क्रोमियम का अगर आप देख लें तो क्रोमियम 24 उसका प्रोटॉन नंबर है, तो आर्गन कोर 4s1 एंड 3d5, ये एक एक्सेप्शनल ट्रांजिशन मेटल कॉन्फ़िगरेशन है, रिमेंबर। अच्छा 92, which of the following has the lowest charge to mass ratio? Okay, the way I did it was that if you look at all of these, the first three are ions, but the fourth one is an atom, right? It's beryllium and the first three are ions. Lithium has a +2 charge, hydrogen has +1 charge, and helium also has +1 charge. तो इनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। अब मैं बताता हूँ कि क्यों। चार्ज टू मास रेशियो, E by M मतलब चार्ज टू मास रेशियो, E डिवाइडेड बाय M, चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज इनमें से ऑप्शन डी पर है ही नहीं, मतलब चार्ज उसका 0 है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हुआ कि चार्ज टू मास रेशियो आंसर उसका आ जाएगा डायरेक्ट 0। इन बाकी सब के आंसर कुछ ना कुछ होंगे लेकिन 0 से ज्यादा ही होंगे, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया 0, इसलिए ऑप्शन डी इज द बेस्ट आंसर, ठीक है, शॉर्टकट। 93, according to the general gas equation the density of an ideal gas depends upon। अच्छा ये तो वो डेरिवेशन आप कर लीजिए, PV is equal to nRT, right? And N is the number of moles, which is equal to mass upon mR, mass divided by mR multiplied by R multiplied by T, PV। अच्छा mass upon volume density होता है, right? तो आप वॉल्यूम को इस साइड पे भेज दें तो ये मास अपॉन वॉल्यूम मतलब डेंसिटी हो जाएगा।
प्रेशर को आप mr से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड ये जो RT यहाँ पर है इनको यहाँ भेज देंगे लेफ्ट साइड पर तो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे. सो P mr divided by RT is equal to the density itself. Now, so what does the density depend upon? It depends upon the pressure, it depends upon the molecular mass, it depends upon the absolute temperature, it also depends upon the gas constant, जो कि हमेशा constant रहता है तो वो उसको तो हम ignore कर सकते हैं. So pressure, yes. Temperature, yes. Molecular mass, yes. So all of these is the answer. Now 94, the actual volume of the gas molecules is considered negligible at the following temperature, following pressures. Achha, guys, this is a very controversial type of question. ये एक ambiguous question है, लेकिन मैं आपको इसके trick बताता हूँ. इसमें इन्होंने actual volume बोला हुआ है गैस का कि negligible हो जाता है. तो guys ये इनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था. लेकिन खैर अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे हैंडल करेंगे. देखिए नेग्लिजिबल किसी भी प्रेशर पे नहीं होगा गैस का वॉल्यूम, ठीक है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है. लेकिन आप अगर आइडियल गैस को याद करें तो आइडियल गैस ज्यादा आइडियल कब होती है? जब उसका वॉल्यूम बहुत नेग्लिजिबल हो, राइट. एंड वॉल्यूम उसका नेग्लिजिबल तब ही होगा जब उसका प्रेशर जो उसके ऊपर लग रहा है वो कम होगा, ठीक है. एंड बाय द वे गाइस, ये वॉल्यूम उस गैस की बात, उस पूरे गैस के वॉल्यूम की बात नहीं हो रही, मतलब जिस कंटेनर में वो गैस पड़ी हुई है उसकी बात नहीं हो रही. ये रिलेटिव वॉल्यूम की बात हो रही है, मतलब वॉल्यूम ऑफ दैट गैस इन एज कंपेयर्ड टू दैट कंटेनर. तो या फिर आप याद कर लें कि जब वॉल्यूम आइडियल गैस का जो है वो ज़्यादा होगा, मतलब गैस जिस कंटेनर में है उस कंटेनर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वो गैस ज़्यादा आइडियल होगी. और वॉल्यूम को ज़्यादा करने के लिए प्रेशर को हमें लो करना होगा, राइट. एंड आपको पता है कि गैस सबसे ज़्यादा आइडियल कब होती है? जब उसका प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो, राइट. सबसे कम प्रेशर आपको यही 2 एटमॉस्फेयर लग रहा है तो यही आंसर होगा बेस्ट. लेकिन गाइस 2 एटमॉस्फेयर पे रियल सिचुएशंस में ऐसा नहीं होता, ठीक है. Now, carbon dioxide and sulfur dioxide both are triatomic molecules, but the heat of vaporization of sulfur dioxide is greater than that of carbon dioxide due to अच्छा sulfur dioxide और carbon dioxide दोनों triatomic molecules हैं, लेकिन heat of vaporization मतलब the heat which is required to vaporize them, right? So guys, heat of vaporization actually depends upon what factor? It depends upon the intermolecular forces, and intermolecular forces in carbon dioxide are van der Waals forces because carbon dioxide is non-polar. ये एक linear structure है जो कि non-polar होता है, right? Carbon dioxide. But sulfur trioxide की अगर आप बात करें तो sulfur trioxide is polar, so that means it would have stronger intermolecular forces. इसलिए that's the answer. Stronger intermolecular forces, that's why stronger, greater energy of vaporization or greater heat of vaporization. Okay, then 96, which of the following has the lowest vapor pressure at 20 degrees? Well, lowest vapor pressure उसका होगा जिसका boiling point सबसे ज़्यादा होगा. Boiling point ज़्यादा होगा मतलब pressure उसका vapor pressure कम होगा, ठीक है. तो vapor pressure at 20 degrees सबसे कम vapor pressure सबसे कम इनमें से उनका होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उसके 20 डिग्रीज पे सबसे कम वेपर्स सबसे कम मॉलिक्यूल्स वेपराइज हुए होंगे, सबसे कम वेपर्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा. इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स in equilibrium to the liquid surface. तो इसलिए water is the best answer because water contains hydrogen bonds and none of these actually have hydrogen bonds in them, ठीक है. That's why water is the best answer, and hydrogen bonds are actually the strongest intermolecular forces. Now 97, which of the following is not a molecular solid? So yeah, bromine is a liquid. It is molecular, but it's a liquid. Lattice energy is also called lattice energy. हम crystal energy भी कहते हैं, ठीक है. किसी कीज में मैंने bond energy देखा है, guys, bond energy इसको नहीं कहते, ठीक है. That's wrong. लेकिन क्रिस्टल एनर्जी सबसे बेस्ट आंसर होगा आपका. आगे चलते हैं 99. For a gaseous phase reaction, when the number of moles of reactants and products are equal, तो क्या होगा भाई? Kp Kc के इक्वल हो जाएगा. रिमेंबर मैंने एक इक्वेशन आपको दी थी, Kp जो है it is equal to Kc multiplied by RT to the power of delta n.
अच्छा ये डेल्टा एन इज द डिफरेंस बिटवीन द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। अगर मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स इक्वल है मतलब इस डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, एंड अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो RT टू द पावर ऑफ 0 इज 1, एंड 1 को अगर आप Kc से मल्टीप्लाई करेंगे तो Kp इक्वल्स Kc आ जाएगा आपके पास आंसर। सो दे आर इक्वल, Kp and Kc are the same, option D. Purification of table salt sodium chloride by passing HCl gas through its saturated aqueous solution is an example of। अच्छा गाइज ये काफी बार आप कर चुके होंगे कि आपके पास अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, मतलब सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में, अब इक्विलिब्रियम में तो नहीं है लेकिन खैर ज्यादा लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है, लेकिन खैर सोडियम प्लस क्लोराइड Cl नेगेटिव एक्वस, एंड ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन की इक्वेशन हमने इस टाइप की लिख ली, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि HCl गैस को हमने उसके थ्रू पास किया, HCl गैस जब पास होगी तो डिसॉल्व होगी तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस बनेंगे। H पॉजिटिव आयंस का तो यहाँ कोई रोल नहीं होगा, लेकिन Cl नेगेटिव के जो आयंस बनेंगे तो उससे ये Cl नेगेटिव आयंस जो कि राइट हैंड साइड पर है इक्वेशन के, they'll increase in concentration. As a result, this equilibrium will shift on to the left hand side due to the common ion effect। इस इफेक्ट को कॉमन आयन इफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि देखें कॉमन आयन आपने इंट्रोड्यूस करा है जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया एंड सोडियम क्लोराइड precipitates out, so that's why it's the common ion effect, ठीक है। एंड ये आपने बहुत बार किया होगा। And this completes the chemistry section. Finally, we are done with NMDCat, Chem, Biology, and Physics. Finally, and stay tuned, guys, for the next video. See you next time.